land of unimaginable beauty. The charm of Kashmir's picturesque lakes, snow-capped mountains and lush forests is only matched by the richness of its innate cultural traits. From handicrafts to exquisite pashminas, the valley boasts a rich history of arts and crafts, passed on through generations, and yet to be fully realized. In an attempt to tap into this massive pool of talent, the Usha Silai label set up a garment design and production cluster in Kashmir in 2018. The Usha Silai school scheme is an opportunity for us also in the department to relate to community, because Kashmir has no dearth of we have a lots of women who are artisans. They have many skills. So when this opportunity came to us in the department, we felt two things. One is that empowering the women. Second is that connecting to an institution so that we can enhance the skills of the women who are related to this trade. It's another unique opportunity for the women of Kashmir, a chance to get selected for the Silai label's upcoming show at the Lakme Fashion Week. Everybody wants to get a government job, which is not possible, as you know, in other parts of the country also. So there has to be some way to employ people, okay? Maybe through these, now that we have incubation centers and people can do on their own, and at the same time other major companies should also come to Kashmir. Usha is one. I am very happy that they came over and we have welcomed them, and now they have set up this incubation center in one of our campuses. हम 15 दिन के लिए ट्रेनिंग करेंगे, 10 से 15 दिन जो भी डिसाइड होगा, मगर हम लोग गारमेंट नहीं बनाएंगे, पहले तो बारीकियों को समझेंगे, सबसे पहले बेसिक सीखना जरूरी है. To select the right talent, Usha organized an assessment session in the tranquil premises of the Kashmir University. आप लोग शर्मा नहीं रहे ना हमसे? Very good. कहाँ से हैं आप? मैं कमलवाड़ी से, यहाँ से 5 किलोमीटर. और आप कितने साल से स्टिचिंग कर रही हैं? If I take you slightly back in time, we sent word around Srinagar, and 30 women came for the initial assessment. And out of these 30 women, we selected 20. And all these women were very enthusiastic, but we kept in mind certain criteria of selection. फ्लावर्स यहाँ से काटे और बटन्स आपने खुद ही बनाया, पोटली बटन्स, बहुत सुंदर. That's inspiring. We did assessment in which we tested out or assessed their basic understanding of sewing and stitching, whether they could use the machine, etc. or not. We've called them back, and we've called our expert who has immense experience in working with designers. मेरा नाम वीरेंद्र वेगड़ है और मैं कच्छ का रहने वाला हूँ और मैं संस्थाएं और फैशन कॉलेजों में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ और गारमेंट कंस्ट्रक्शन और पैटर्न मेकिंग मेरा बेसिक सब्जेक्ट है. एक बड़े दिग्गज डिजाइनर है, वो एक लाइन इधर से इधर नहीं होगी जो कोई कस्टमर को जाएगी, तो ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज और ये चाह जो आपकी है ये आपको अलाइव रखनी होगी कि मुझे सीखना है, और वीरेंद्र भाई तो सिखाई देंगे. वो हो जाएगा. और आप कितने साल से स्टिचिंग कर रही है? 4-5 years. The assessment of the skills and expertise of the women lasted for hours. जो एम्ब्रॉयडरी करवानी है वर्कर से करवाई. Very good. उसके बाद मैंने 6 months कोर्स किया है स्टिचिंग के, क्योंकि मेरा पहले से ही था इसी की तरफ. ये जो तिल्ला वर्क है फैब्रिक में नहीं लाया है. In order to showcase their talents, the women brought along samples of their work. ये फ्लावर्स कहाँ से काट के लगाए गए? एक्स्ट्रा कपड़ा करा उससे काट के फिर ऊपर से लगाया. वेरी गुड. घर से करती हैं? घर से करती हैं. कितने साल से सिलाई कर रही हैं आप?
साल भर हो गया। Some women came to the assessment session with advanced skills, leaving the trainers pleasantly surprised. यहीं के शेप्स है ना, ब्यूटीफुल दिस इज। वो जो कमियां है आपके अंदर वो मैंने देख ली है, जो अच्छापन है वो भी देख लिया है। अब जल्दी ही हम लोग मिलेंगे वापस, आप थोड़े स्ट्रॉन्ग होके आना। At the end of a grueling assessment session, 17 women have been selected for the next step of the program. He saw the work that they have done. He's also had discussions with them, asked them questions, and he's come to a conclusion about some of these women who could be taken to the next level. उनको मशीन चलाना आता है। दूसरी बात यह है कि गारमेंट बनाने की समझ है। बस ये दो चीज़ें और उनके अंदर वो डालनी है कि एक तो फिनिशिंग क्या होती है, जो अच्छे गारमेंट होते हैं, जो फैशन लेवल के गारमेंट होते हैं, उसके अंदर फिनिशिंग क्या अलग अलग तरीके की होती है। और दूसरी चीज़ है कि उनकी आँखों को सुधारना है कि अच्छा क्या होता है। जब तक उनको यही नहीं समझ होगी कि ये, पहले तो इनको दिखाना होगा कि अच्छी चीज़ें क्या होती है। जब अच्छी चीज़ों को देखेंगे तब वो अच्छी चीज़ों को करने के लिए उत्साहित होंगे। उनका जो बेसिक है, मतलब वो उनका घरेलू जो काम करते हैं उस तरीके का उनका बेसिक सही है, मगर जहाँ पर जैसे उषा फैशन लेवल के लिए जो काम करना है, रोहित बाल जी के जो काम करना है, उनके लिए जो फिनिशिंग वाला जो लेवल है वो उनके अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस दौर का काम नहीं है। उस दौर के लिए उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन करने के बाद हम लोग वो फैशन लेवल का काम इनसे ले सकते हैं। Now we are planning to organize another 15 days of advanced level training, and for the advanced level training we will invite all the 20 women back. And once that training is done, then we will select the women who have imbibed the skills well for the fashion label and to make the garments. When the 17 selected women arrived for their training, they finally learnt who they were going to be working for. बिल्कुल लग के चलनी चाहिए। अगर ये अंदर रह गए तो जड़ में सिलाई नहीं आएगी। ये जो गारमेंट है ये हमें दिल्ली से मिले हैं। रोहित बाल जी एक डिज़ाइनर है जो हमारे साथ इस क्लस्टर में काम करेंगे। उन्होंने ये डिज़ाइन दिया है हमें बनाने के लिए, तो ये डिज़ाइन हमें सबको बनानी है। तो ये मेंसवेयर का कुर्ता है, इसमें फिनिशिंग महत्व का पार्ट है। डिज़ाइनर के काम में फिनिशिंग अच्छा होता है। ये अनारकली गारमेंट है, इतना सुंदर बनाया है। तो ये है पैनल वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पैनल है। इन्होंने ये 2 पार्ट के बीच में रुई दी है, जो कॉटन की रुई आती है उसको डाला है, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट लाइन कुल्टिंग किया है। इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इतना सारा वेट है, तो ये वेट अगर यहाँ पे लगेगा तो इसको झेलने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए। तो ये 4 गारमेंट आपको हमें ट्रेनिंग के दौरान बनाने हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग है बेसिक स्टिचिंग की, जैसे बेसिक प्लीट्स हो गया, गैदर्स हो गया, फिर बेसिक सिम वेरिएशन हो गया, बेसिक तुम्हारा कॉलर हो गया, बेसिक प्लेकेट्स हो गया। तो इनके दिमाग में यही था कि हमें तो आता है, मगर जब इन्होंने मशीन पे बैठ के जब मशीन एक्सरसाइज की, जैसे स्ट्रेट लाइन करी, तब इनको पता चला कि हमें तो आता ही नहीं कुछ। तो क्या करते हो? एच सिलाई सीखने का प्रैक्टिस है, ये टक्स नहीं है। ये आया, एक समान नाप चाहिए। Virendra started the training with some basic exercises like stitching in straight lines. He explains the difference between the edge stitching and the tuck stitching to his team of Silai School women. पतला हो गया, ठीक है, देख लो। जैसी सिलाई सर ने हमें यहाँ सिखाई ना, वैसी हमने पहले कभी की ही नहीं। ये सब हम पहली बार देख रहे हैं। मैं तो 2 साल से टेलरिंग कर रही हूँ, लेकिन ये तो मैंने पहली बार देखा है। ये इतना आया, फिर यहाँ पूरा आया, फिर यहाँ कम आया। अब इसको कैसे करना ये देख लो।
एक समझदार की सिलाई, ये बड़े कपड़े की तरफ धकेलना है, आपने इस तरफ धकेला था, यहाँ पर यूं जाएगी ऐसे। Patience was the one attribute needed in abundance as the women went through one detail-oriented revision after another during the training. कहीं भी उल्टी हो जाती है तो ये सर बोलते हैं वंस मोर। वंस मोर मतलब रीडू। जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक तेरा तकलीफ है। कई बार ऐसा होता है कि भाई वापस बना के ला, ये अच्छा नहीं है, इसको वापस बना के ला, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तब मैं इनको वंस मोर बोलता हूँ तो इनको थोड़ा अच्छा भी लगता है और वापस करके भी ले आते। मैं सुबह से 3 बार मैंने ये खोला, सर ने बोला वंस मोर वंस मोर। अच्छा लगता है उनको वंस मोर। बहुत इजी है, हम लोग देखते हैं, हो सकता है मेरे से बेहतर बनाते आप। जो हमने सीखा है वो As days go by, along with basics, Virendra adds on new techniques and methods in his training. तो यहाँ से पहले 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच, तो 1.5 बाय 1.5 मैंने लिया, यहाँ से भी 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच। उन्हें इतना सारा कपड़ा क्यों दिया है? अगर आपका 5 नहीं हुआ अच्छा वाला तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कपड़ा है। सुई कौन सा था? अगर ये लंबा और छोटा होता है उसकी वजह कौन है? हम। कौन गलत करता है? हमको पता होता है कि हमारी सुई ऊपर जा रही है फिर भी जाने देते हैं। मुझे टोटल 5 चाहिए, गलत तो चलता ही नहीं ना। अच्छा सर फिर भी बोलिए ना, मतलब जो पहले किया था उससे पहले से बेहतर हुआ है। जो कपड़े हम पहले बनाते उनमें वो फिनिशिंग जो अब है, ज़रा बात से भी देखना कि कहीं पे कोई गलती मत है, हर किसी चीज़ को बारीकी से देखना। ये नहीं कि हम पहले बनाते थे हम टाल देते, अब हो गया चलेगा, लेकिन अब वो नहीं चलेगा, अब हमें बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ता है। एक अच्छा चेंज आया क्योंकि वो पता ही नहीं था कि मशीन सिलाई का जो परफेक्शन है वो परफेक्शन में कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक और बटन लेके आओ और धागा लेके आओ। ये जितना सर्कल है ना ये ध्यान रखो, ये कितना है? हाँ नीचे से ही जाता है वो, दिख रहा है? आपका जो था ना ये सर्कल मुंह बंद नहीं हो रहा है, इसमें ये गंदापन दिख रहा है। जितने भी सैंपल है कल सबको लेके आना है, वो आपकी कंप्लीट हो गई। उस सैंपल पे आपको स्टिकर को लगाना है यहाँ ऊपर, अपना नाम और सैंपल का नाम। इसका नाम है ट्रायंगल, है ना? आप डेट भी लिख सकते हो। पहले घर से जो काम करते थे और अभी जो करते हैं दोनों में बहुत चेंजेस आ गया, क्योंकि जो घर पे करते थे उनमें टेढ़ी मेढ़ी सब कुछ चलता था, मतलब वो अपने मुताबिक जो भी चीज़ करते थे वो करते थे। मगर अब वो घर पे जाके भी उस मुताबिक काम नहीं करेंगे जो मुताबिक करते थे, क्योंकि उनकी आंख में वो सफाई पता चल गई कि भाई हाँ साफ़ सुथरा क्या होना चाहिए, कपड़े को संभालना कैसा होता है, कपड़े को रखना कैसे होता है, उसको तानना या नहीं तानना होता है। इसने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपनी बैग में रख दिया। अब बैग में रख दिया तो बैग में उनका टिफिन बॉक्स में से अच्छे से खाना गिर गया। अब खाना गिर गया तो ये सैंपल बर्बाद हो गया। तो अब ये सैंपल को इनको दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर ये कल उठ के ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो हो सकता है ये गारमेंट को भी बिगाड़ दे या कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट को भी बिगाड़ दे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों को इनको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार मशीन का दाग लग जाता है। उनकी जो समझ थी उस समझ के मुताबिक जो हमें सैंपल दिए गए थे, सैंपल और उनका काम का जो समझ था वो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस था। तो उनका जो घर का जो कार्य था उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, और ये जो हमें काम करवाना था उनसे जो, तो उनमें एक क्वालिटी वाइज काम चाहिए था। तो क्वालिटी और उनके घर का काम के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा था, जिसको ट्रेनिंग के दौरान क्लियर करते करते मैंने उनको सिखाया है। बट दिक्कत ये है कि उनको प्रैक्टिस करते करते वो क्वालिटी तक पहुंचेंगे। अभी भी वो क्वालिटी तक पहुंचने में उनको काफ़ी देर लगेगी। ये गलती की वजह क्या है ये बताओ? इसने एडजस्टमेंट नहीं किया।
team is working on one of the most complicated samples and it is a race against time. Even a small mistake can derail their progress given the already stiff deadline. तो तुमको भी पता नहीं चला कि इसमें गेदर्स ज़्यादा हो गए और इसको ये नहीं पता चला कि इतने सारे गेदर्स के पीस लगाने के बाद ये जो पीस आया है उसमें गेदर्स ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है और पता चला कि लगने के बाद पता चला कि ये कम पड़ रहा है, किसी और की हो या अपनी हो, गलती पता होनी चाहिए। हाँ, हमें खोलना पड़ा वापस क्योंकि 44 पैनल वाला 32 में एडजस्ट नहीं हुआ। मतलब एक ही टाइट पड़ गया, दूसरा ढीला छोड़ा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सीधा ही चली। ट्रायल में तो डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं, जैसे पहले फर्स्ट स्टेप में बच्चे को सिखाते हैं, हम पहली बार ए बी वगैरह वैसे ही स्टेप बाय स्टेप खुद ही आता है, फिर धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें 3 घंटे लगेंगे, नेक्स्ट होगा उसमें 1.5 घंटे लगेंगे, उससे नेक्स्ट होगा उसमें हाफ आवर लगेगा। वैसे ही थोड़े थोड़े स्टेप पे कवर कर लेते हैं। Training will be over in few days and the final production of the garments will start soon after that. As the team will have limited time going forward, here's how they are planning their execution timelines. अभी हमें इसके बारे में भी नॉलेज हो गई तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर के पास जाना बार बार, क्या करना है, वो ये कैसे जोड़ना है। तो तब हमें नॉलेज होगी इस बारे में, तो तब हमें उतना टाइम नहीं लगता जितना अभी लग रहा है। सोचने में डोरी नहीं आती थी, वो सीखा, तो उसके टाइम में नहीं जाना सर के पास कि डोरी सिखाओ, या बटन्स लगाने होंगे वो हम खुद बना सकते, उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा। इसीलिए हमें सब कुछ अब आया इस ट्रेनिंग में। अब हम 40 डेज जो ड्रेस बनाने हैं उसमें हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। जो जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होंगे उसको हम पहले सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद वो गारमेंट में बनाने के जाएंगे। भाई अब ये ऑपरेशन तुमको गारमेंट में करना है, तो हर रोज़ वो जो रह गया है हमारा, जो नहीं हो पाई ट्रेनिंग के दौरान, उस चीज़ को हम लोग हर रोज प्रोडक्शन के दौरान करते जाएंगे। We look forward to working hard with you and my request For these women it has been a tough assessment round followed by an even tougher 15 days of training to perfect their skills. पैटर्न कटिंग जानती हैं? Stay tuned for the final verdict by ace designer Rohit Bal. Same time next week.